चैप्टर 9 बोली थी। चैप्टर 9 से पूछूंगी। In progress. फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर फैक्ट्रीज? The place where officials The places where factors worked. officials worked. official and worked. है ना? और पहले आरब ने बोला था, पहले आरब बोलो फिर बोलेगा। पहले आरब। The place where factors or official worked. है ना यार ना हम जाए सही में तो मैं तो ब्लॉक करके हटा देंगे। अरे नहीं किया हटेल वन देख लेते देखिए आप ना हमरा को पता है भग दिखाओ तन भगले ना दे हमर क्लास स्वाति कुछ बोल रही हो? गुड आफ्टरनून मैम। अभी पीयूष कहाँ चला गया? बोलना चाहता। बोलो पीयूष, कितनी बार पूछूं? व्हाट आर फैक्ट्रीज? The places where officials worked. सार्थक क्या बोले? The place where officials worked. ना, कौन सही बोलेगा? And the trading centers are called factories. फैक्ट्रीज Working place of officials. नो, where officials The live, working place of वहाँ उसका नाम है। And the trading centers were called factories and the factors worked there. नो, ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, ठीक बात है। और फैक्टर्स कौन? गुड आफ्टरनून मैम। Officials. ऑफिशियल, यस, ऑफिशियल्स वर कॉल्ड फैक्टर्स, यस। तो पहले से ही गलत आंसर हो रहा था। ट्रेडिंग सेंटर फैक्ट्री होते हैं। अच्छा, नेम 3 प्रेसिडेंसी टाउन। Bengal, Madras, Bombay. Bombay, Madras. Bengal, Madras, Bombay, Bombay. Madras, Bengal. Bengal, Madras, Bombay. How many Karnataka wars were fought? 3. Three Carnatic wars. Okay, and what was the result? Can you summarize it in a single sentence? French East India Company was dissolved. French India Company was dissolved. In 1770, the French ambition of establishing an empire in India ended, and the British became a superpower. Okay, सही बात है। अब से हैंड रेस करना, मैं 1 by 1 पूछूंगी, ठीक है? वैसे सबकी आवाज मिक्स्ड हो जा रही है। जैसे बोलती हूँ हैंड रेस करना, फिर पूछूंगी। अच्छा, you know that Karnataka wars were a series of battles. Can you tell me that these wars fought between which 2 trading companies? East India Company. अंशु वेट करो, हैंड रेस करने की बात हुई थी। सबसे पहले सार्थक ने किया और फिर पीयूष। सार्थक बोलो। French East India Company and British East India Company. हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सीरीज ऑफ वॉर था, कर्नाटक वॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अनवरुद्दीन?
The Nawab of Karnataka. The Nawab of Nawab Karnataka. of Karnataka. Nawab of Karnataka. Who was Duplex? Samriddhi, who was Duplex? Samriddhi? I want the participation of each and every students of my class, so only handful of students will not reply. Only handful of students will not reply. Okay, Aryan bolo, Aryan class 8D. Joseph Francois. क्या बोले आर्यन, क्या बोले? Ma'am, who was Duplex na? हाँ, Joseph Francois. Commander of French East India Company. He was the French general. Commander of French East India Company. Yes, Commander of French East India Company. Commander of French East India Company. And who was Commodore Bonnet? Commodore Bonnet? Commander of East India Company. Yes, Commander of East India Commander of East India Company. Good. अच्छा. Who earned name and fame during Carnatic Wars? Who earned name and fame during Carnatic Wars? Sarika. Robert Clive. Very good. Robert Clive. ठीक है? अच्छा. ठीक है. Next question. Next question, that in which year Battle of Plassey fought? Ananya Ghosh. 1757. Okay. Prachi, Battle of Plassey was fought between whom? Which two power? Prachi. Robert Clive and the army of Sirajuddin. मैंने जिसका नाम लिया है सिर्फ वो बोलेगा. मैं सबके हैंड रेज देख रही हूँ. मेरे स्क्रीन पे 25 बच्चे दिखते हैं और किसने किसने रेज हैंड किया है सबको देख रही हूँ. बारी बारी से पूछ रही हूँ. प्राची से पूछी थी ये सवाल कि बिटवीन whom बैटल ऑफ Plassey was fought? Prachi. And Robert Clive and the army of Siraj-ud-Dawla. Okay. ठीक है. Very good. Who bribed Siraj-ud-Dawla? Meenal. Who bribed Siraj-ud-Dawla? Ananya Ghosh. हाँ. Ananya Ghosh. Okay. And name the another person who became Nawab after Mir Jafar. Abhijit. Who became Nawab after Mir Jafar for a very short period? Mir Qasim. हाँ. Mir Qasim. Mir Qasim. Mir Qasim. अच्छा. Was Robert Clive, was Britishers stopped demanding more and more money after getting 24 Parganas land revenue and a huge amount of money? No. No. Okay.
then who was against this continuous demand of the British? Mir Jafar. Mir Qasim. Mir Jafar, he did not succeed to fulfill the continuous demand of British. और वो फुलफिल नहीं कर सका, लेकिन कौन अगेंस्ट था? तो मीर कासिम शुरू से ही उनके हाथ का पपेट नहीं बनना चाहता था, ठीक है। अच्छा, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? 1764. 1764, वेरी गुड। अच्छा, in this battle who won? British East India Company. British East India Company under the leadership of whom? Robert Clive. Yes, Robert Clive. Okay. Yeah. अच्छा, now what was dual government? 3 marks का है, मुझे बताइए what was Right to collect money by the administration, company controlled army, etc. Under dual government, the company controlled the army, the revenue system, and the. वेट कीजिए, मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा हैंड रेस। बाकी लोगों ने आप लोगों ने अपने हाथ नीचे कर लिए, सिर्फ मीनल, अनन्या घोष और अनन्या सिंह दिख रही है। बोलो अनन्या सिंह, डुअल गवर्नमेंट बोलो। अनन्या सिंह, डुअल गवर्नमेंट बोलो। Right to collect the money by the British began as a dual government in Bengal. The Nawab looked after the administration and the company controlled the army, the judiciary and the revenue collection of Bengal. This arrangement gave immense power to the British without any responsibility, but the general public suffered. Thousands of people died in Bengal famine in 1770, but the company didn't help the victims and the Nawabs didn't have the resources. ओके, ठीक है, फेमीन होगा, ठीक है। अच्छा, आरब ने भी आंसर लिख के दिखाया, बट आरब वो बहुत शॉर्ट में तुमने लिखा, उसमें तो 3 मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। आरब जितना और पॉइंट्स लिखने वाले तो नहीं लिखा है या फिर जितना दिखाया है तो उसमें 1 ही मार्क्स दिया जाएगा, और अनन्या सिंह ने जितना कहा उसमें उसे 2 मार्क्स। हाँ, क्या हो गया? और लिख रहे थे तब तक से मैसेज चला गया आपके पास। मेरे पास चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फॉट? 4. अच्छा, 4. अब फिर वेट करना, फिर नहीं गड़बड़ कर देना, सब लोग बोलने लगना, सिर्फ हैंड रेस। Can you tell me the summary of Anglo-Mysore War in 4 sentences? Only 4 sentences for 4 marks. Aditi, बोलो Aditi. Aditi, बोलो. The death of the Raja Mysore of Wodeyar in 1760, Hyder Ali became the ruler of Mysore. Hyder Ali extended his territory. It is just reading. I want summary of all the Anglo-Mysore War in 4 sentences only. No Aditi. ये जिसके समझ में आई है वही सिर्फ बोल सकता है, 3-4 सेंटेंस को लेकर इसको खत्म किया जाए। चलिए, हैंड रेस के लिए वेट कर रही हूँ, बहुत इजी है।
साथ हुए, 2 किसके साथ हुए, और रिजल्ट क्या हुए, एक आध ट्रिटी का नाम ले लो, बस 4 लाइन हो गया, क्लू भी दे दी। जल्दी हैंड रेस करो। आरव किया, अंशुल किया, पता है आरव अंशुल का आएगा, इसके सिवा किसने, कौन करोगे? मुझे सिर्फ देखती हूँ और कौन कौन है मीटिंग में। मीटिंग में तो शायद भी है, साक्षी भी है। साक्षी बिल्कुल चुप्पी लगा दी हो, क्या बात है साक्षी? पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देती हो साक्षी। साक्षी, सलोनी बोलोगी? नहीं बोलेगी। अच्छा, सिवारव, अंशुल और पीयूष दिख रहा है। ठीक है, हम इनसे बोलवाते हैं, ये सुनकर बाकी बच्चे भी अपना सुना सकते हैं। ओके, चलो अंशुल बोलो। First Anglo-Mysore War was fought in 1767 to 1769. It was fought between Hyder Ali. In this war, the British lost. Second Anglo-Mysore War was fought between Hyder Ali and the English. But in this war also English lost. Third Anglo-Mysore war was fought between Tipu Sultan and allied with French. In this war, Tipu Sultan lost, and it was ended by the signing of the Treaty of Srirangapatnam, and the last Anglo-Mysore War was fought in 1799, where Lord Wellesley became the Governor General of India. ठीक है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। 4 सेंटेंस में बोली थी और मैंने क्लू भी दिया था। आरव बोलो। The Anglo-Mysore War, the first and second Anglo-Mysore War was fought between Hyder Ali and British India Company, and in first and second Anglo-Mysore War, Hyder Ali was defeated. Hyder Ali won the battle. Excuse me, Hyder Ali was defeated. मैम गलती से बोल दिया। हैदर अली won the battle by making peace with the Marathas and luring the Nizam. After the death of Hyder Ali, his son Tipu Sultan started battle with British East India Company. The result of the war is the यस, ठीक बोले हो। ये सुन के किसी को याद आ रहा है जो कि मुझे सुना सकता है? मैं जो क्लू बोली थी उसी के हिसाब से आरव ने कहा। बोलना था टोटल 4 Anglo-Mysore wars were fought. In first 2 wars, Hyder Ali and British fought with each other, and in which Hyder Ali defeated the British, या फिर हैदर अली won, and then after his death Tipu Sultan became the next king, and during his time 2 Anglo-Mysore war was fought, 3rd and 4th, in which he lost the battle and he died also. हो गया। कॉमा कॉमा देकर उस सेंटेंस को बढ़ाते जाते, और लास्ट में अगर चाहो तो उसमें आप ट्रिटी का नाम भी दे देते। बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिटी मैसूर वेंट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। तो अगर मिडिल ऑफ द चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे कैसे संभालोगे जो आप बताते नहीं हो? हम जब बताते हैं कि कोई चैप्टर पढ़ के आओ तो उसका ऑपरेशन कर डालो।
वन वर्ड हर लाइन पे करो, समझो, क्योंकि बहुत साल से मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको अटेम्प्ट करते करते आपका एक, क्या बोलूं, आपकी ग्रिप में आ जाता है हर चैप्टर कि कहीं से भी पूछा जाए तो यू कैन राइट। समझे? यही प्रैक्टिस तुम लोगों में लैकिंग, यही चीज रह रही है। I know that so many problems you have to face also, that network problem and घर में कई भाई बहन होंगे, कौन मोबाइल यूज करेगा, कौन क्या करेगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम बहुत घरों में हैं। बट कैसे करोगे ये सब अगर क्लासेस नहीं करोगे? उस दिन किसी ने लिखा कि नेट नहीं बचता है तो यूट्यूब वीडियो भी नहीं चलता है। वैसे एक बात बोलूं, आप लोग जो मोबाइल में जो आप लोग ये करते हो, रिचार्ज जो कराते हो, मोबाइल चार्ज जो कराते हो, जैसे कि जियो का 599 में 3 मंथ्स का 84 डे का देता है ना? ठीक है, जो भी हो, 3 हो या 2 हो, 84 डे का देता है। ठीक है, अब 555 पड़ता है। सुनिए ना, 599 का हो गया। अच्छा, अब उसमें तो आप बात भी कर रहे हो और 2 GB आपको फ्री दे रहा है। अब आप उसमें अगर वर्क फ्रॉम होम का पैकेज भरा लो, उसमें 151 रुपीज का वो पूरे 1 महीने के लिए आपको 30 GB डेटा फ्री देता है। वर्क फ्रॉम होम भरते के साथ साथ तुम्हारा मोबाइल अजीब तरह का खूब फास्ट काम करने लगेगा। मैम किससे? इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सजेशन दी, बहुत लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैम क्या नाम बोली? वर्क फ्रॉम होम, कोई नाम नहीं है, सारे टीचर्स भरवा रहे हैं। मैंने भी 599 जो मैं ली, उसके बाद जिस समय घर से तीनों क्लासेस लेना, तीनों ये करना, कुछ दिन तक 251 भरवाई थी वर्क फ्रॉम होम, जिसमें 50 GB दिया था। उस बार बहुत गड़बड़ तरीके से बहुत GB जल्दी जल्दी खत्म होने लगा। फिर समझ गई, पहली बार धोखा खाई, नेक्स्ट बार से 151 भरवाती हूँ, आराम से चलता है। 3 GB का मतलब बहुत रिच हो गए तुम, और उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि 2 GB खत्म होता भी नहीं है, तुमको धमकी आ जाती है कि 50% यूज हो गया, 90% यूज हो गया। ये जानकारी इसलिए दे दी कि आप लोग भी देखो, वो पैसा तो तुमने भरा है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा हर कोई यूज कर रहा, बातचीत कर रहा, वो तो भरवा नहीं है, उसमें 2 GB मिल रहा है। और ये वर्क फ्रॉम होम आपने मात्र 151 रुपया खर्च किया, जिससे आपका स्मूथली उतने दिनों तक काम चला। अगर संभव हो कर लेना तो ऐसे बैठकर आराम से वीडियो भी देख सकते हो। संडे को कोई क्लासेस नहीं रहती है, हर दिन का वीडियो किसी एक सब्जेक्ट को लेना, उस सब्जेक्ट के वीडियो को डेट वाइज देखते रहना, और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वीडियो को पॉज करके, आगे बढ़ाकर, पीछे करके, उससे रिलेटेड बात को नोट कर लेना। क्या करोगे, इस तरह से अभी चलना है। कम से कम स्वस्थ हो ना, घर में हो तो कोई चारा नहीं है। देखो आंखों पर कितनी जोर पड़ रही है, आंख की स्थिति बहुत खराब है, बट क्या करें, तुम्हें पढ़ना है, हम काम करना है, तो ये काम आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब the Treaty of Srirangpatnam, या फिर राइट 3 sentences on Treaty of Srirangpatnam।
अंशुल के हाथ दिख रहे हैं, बोलिए अंशुल क्या बोलिएगा ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम अगर आएगा तो। मैम वो पिछला क्वेश्चन का रेज हैंड था। पिछला क्वेश्चन का था अच्छा कोई बता दो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में क्या बोलोगे, ठीक है उस बुक को देख कर बताओ। ओके मैं आपको चॉइस देती हूँ, बुक है पेज नंबर मैम सारा में दिया हुआ है। सारिका बोलो, सारिका बोलो। Ma'am, British forced Tipu Sultan to sign the Treaty of Srirangpatnam. According to this treaty, Mysore had to hand over to the British, and Tipu's two sons had to be the war hostages, as captured as a war hostages. लेकिन एक गलती कर दी तुमने, तुमने कहा कि मैसूर हैड मैसूर की आदमी नहीं है, टीपू हैड ओवर मैसूर टू, वहां पे तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं तुमने बिल्कुल सही कहा। और मीनल बोलना चाह रही थी क्या, मीनल बोलोगे ये क्वेश्चन, बोलो मीनल। Tipu was forced to sign the Treaty of Srirangapatnam. यस बोलो। Mysore नहीं hand over half of. देख ली कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और सारिका को बोलते भी सुन ली, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, फर्स्ट लाइन सही बोली, सेकंड लाइन में क्या बोलो हम हिंदी में बताते हैं, आप इंग्लिश करो उसका। तुम बताना कि इस ट्रीटी के तहत को कौन सा वर्ड यूज करोगे, एक वर्ड बता दो, जल्दी से बता दो मीनल। According to this treaty. हाँ According to this treaty. Yes, Meenal, yes, very good. According to this treaty, this and that बोलकर समाप्त करो। ना तुम उसके बाद को रिपीट की, ना तुम बुक जो खोली हुई है बुक की बात को रिपीट की, ये तो अपनी बुद्धि है, नकल के लिए अकल चाहिए। आपने नकल भी किया बट अपने अकल से आपने समझने भी नहीं दिया कि आपने वो काम किया। इस तरह से करते करते तो प्रैक्टिस होगी आपकी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। बुक देखकर क्वेश्चन का आंसर खोजना, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलना, 2-3 बच्चों का आंसर सुनकर चौथे ने वो सुना हुआ आंसर दिमाग में रखकर उसको बता देना। These are the practice. This is called practice. Practice makes a man perfect. बोलो मीनल, बोलो जल्दी, हम सुनने को बेचैन है। 2 लाइन बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। According to this treaty, Mysore had to hand over half of its territory to the British. ये वही गलती की जो सारिका ने की, हैंड ओवर किसने किया? मैम टीपू सुल्तान ने। He had to hand over Mysore to the British and to his 2 sons as a war hostage. ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। काफी दिया था क्या मैम, हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी। हाँ, हाफ ऑफ इट्स टेरिटोरी। यहाँ पे सबने देखा नहीं, सबने इस बात को नजरअंदाज किया। सार्थक ने देखो पॉइंट आउट किया, जो बात बहुत सही है। न तुम दोनों ही देखे बोलते समय, न मैंने ध्यान दी कि कितनी टेरिटोरी देनी थी, आधा या पूरा। ओके चलिए अब इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट पैरा से पूछते हैं। नेक्स्ट पैरा से क्या पूछूं? एक्सप्लेन 4th एंग्लो-मैसूर वॉर। चलो देख कर ही बोलो। एक्सप्लेन 4th एंग्लो-मैसूर वॉर, लेकिन अपने लैंग्वेज में बोलना। पहले 2 मिनट पढ़ लो, समझ लो, और जो बोलना चाहो। बाकी सारे बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम लोग बोलोगे। चलो बोलो, हैंड रेज करो। 4th एंग्लो-मैसूर वॉर।
जितने शॉर्ट में बोल सको मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उसके मैटर को मुझे समझा दो बस। आर्यन बोलो आर्यन। The fourth Anglo-Mysore War was a conflict in South India between the Kingdom of Mysore against the British East India Company and the Hyderabad Deccan in 1798 to 1799. ओके, और कोई? अनन्या घोष बोलो। और कोई बोलेंगे? अनन्या घोष बोलोगी? The fourth Anglo-Mysore War. हाँ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ, ठीक, उसके नीचे ही तो है। अभी विपाशा बोलना चाह रही है, विपाशा बोलो, बोलो विपाशा। और अदिति भी बोलना चाह रही है, ठीक है, पहले विपाशा बोलो फिर अदिति बोलेगी, बोलो विपाशा। विपाशा गायब हो गई। बोलो अनन्या, बोलो, मैं तो पूछ ही नहीं हूँ, तुम खाली हैंड रेस कर रही हो, बोलो। When the British captured the capital of Mysore, the ruler Tipu Sultan was killed in the battle. ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो। मैम आगे। ठीक है, अब बोलो विपाशा, क्या बोलोगी, बोलो विपाशा। विपाशा, हाँ In the fourth Anglo-Mysore War, yes ma'am. हाँ हाँ सुन रहे हैं। In the fourth Anglo-Mysore War, when Lord Wellesley became the governor of India in 1719, the Tipu Sultan was killed because the British captured the attack from south, east, and west, and the Tipu Sultan was killed during the defense of the city. बोलो अदिति, बोलो अदिति। The fourth Anglo-Mysore War was a conflict in South India between the Kingdom of Mysore against the British East India Company and the Hyderabad Deccan in 1798-99. In fourth Anglo-Mysore War, Lord Wellesley became the Governor General of India. Tipu Sultan alliance with the French was seen to बहुत अच्छा अच्छा। एक मिनट, देखकर सबने कहा, बट हर बार सार्थक ने बहुत ही अच्छा बात बताया। किसी का ध्यान नहीं गया था कि ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल। मैंने कहा था कि नकल के लिए अकल चाहिए। वेरी गुड सार्थक। बाद अनन्या सिंह, पहले सार्थक जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी, फिर अनन्या सिंह बोलेगी, बोलो। Marathas and from North India and the British attacked from south, east, west, and in this war Tipu Sultan died. Okay, very good सार्थक। बोलो अनन्या सिंह। When Lord Wellesley became the Governor General of India, he found that Tipu Sultan's alliance as a treaty, and with the Nizam of Hyderabad and Maratha, he attacked Mysore from all the four sides, and Tipu was killed in this battle. Okay. एक मिनट अनन्या, तुम्हारे मैं देखती हूँ क्या तुमने इसने थ्रेट को ट्रीटी बोल दिया। हाँ क्या सार्थक, क्या
मैम इसने थ्रेट को ट्रीटी बोल दिया। हाँ, थ्रेट को आपने ट्रीटी बोल दिया, उसी से मैं समझ नहीं पा रही थी, उसीलिए बोली कि अनन्या रुको। फिर मैं मोबाइल को ये की, तुम लोग का फोटो है इसमें, मैंने बुक कितना कैरी करके लाऊं, लैपटॉप लाऊं, ये लाऊं, तो फोटो ले लेती हूँ। उसी को देखी कि अनन्या ने कहा क्या, वो थ्रेट है, धमकी है बाबू, ठीक है, वो ट्रीटी नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो कि टीपू डिड फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच, ओके, एंड ही वाज क्या बोलूं, उसने अपने आर्मी को फ्रेंच लोगों से, मतलब फ्रांस से उसने ट्रेनिंग दिलवाई थी। देखो तो ये लाइन कहाँ है, सार्थक जल्दी से खोज के दो कि हिज आर्मी वॉज, क्या बोलूं, मुझे दिख भी नहीं रहा है फोन पर और बता भी नहीं पा रही हूँ। हिज आर्मी वॉज ट्रेन्ड as he gave training to his army by the help of the French soldiers. फ्रेंच लोगों से उसने आर्मी को अपनी ट्रेनिंग दी थी, बट beside it he lost the war because at the time of France was क्या, देख रही हूँ पीयूष, एक मिनट, फ्रांस वॉज एंगेज इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो they could not came to help Tipu and he lost the battle। ये कहानी भी पढ़ाते समय मैंने सुनाया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के लोग एंगेज हो गए थे, तो फ्रांस से इसने दोस्ती की थी, अच्छी बात है, अपने दुश्मन के दोस्त से दोस्ती की थी, बट वो दोस्ती उसकी काम नहीं आई। क्यों? वे लोग जानबूझ के इसको धोखा नहीं दिए, बल्कि वे लोग तो अपने ही देश में एंगेज थे कि वहां पे क्या हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस वजह से